topic is the Carnatic War and their result. In this topic, we will learn about the Carnatic War and its result. British East India Company and French Company were making efforts to gain benefits and expand their political influences. Both tried to surpass each other by purchasing Indian goods at the lowest price. Both wanted to have control over the markets and to gain more facilities and more markets. They began to interfere in the internal affairs of the Indian states. Both dreamed of holding political power in their hands for control over markets. The headquarters of French company was in Pondicherry on the southeast coast, while British company main center was Fort St. George, Madras, which was not very far from Pondicherry. Both companies were ambitious and constant skirmishes took place to throw each other out of India. Three wars known as Carnatic Wars in the Indian history were fought between the two companies. सो स्टूडेंट्स, जिस तरह से अभी बताया हमने कि ईस्ट इंडिया कंपनी और जो फ्रेंच कंपनीज थी, ब्रिटिश कंपनी और फ्रेंच कंपनी, दोनों ही हमारे यहाँ क्या करना चाहते थे, अपना मार्केट कंट्रोल करना चाहते और यहाँ पर जो अपने गुड्स हैं वो बेचना चाहते थे और उससे प्रॉफिट कमाना चाहते। तो दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कंपटीशन चल रहा था। दोनों ही कोशिश करते थे कि वो कम, हमारे भारत से कम प्राइस में अपना सामान ले सकें और बाहर बेच सकें और वहां से लाया गया सामान ज्यादा प्राइस में बेच सकें। दोनों ही पूरे मार्केट पर कंट्रोल करना चाहते थे और इस तरह से क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने इंटरनल जो हमारे अंदर के जो मैटर होते थे उन पर उन्होंने इंटरफियर करना शुरू कर दिया। दोनों ही सपने देख रहे थे कि पूरे मार्केट पर वो कंट्रोल कर लें। फ्रेंच कंपनी का जो हेडक्वार्टर था वो साउथ ईस्ट कोस्ट में पौंडीचेरी में था, जबकि ब्रिटिश कंपनी का जो था वो जो मद्रास में था, जो कि पौंडीचेरी से बहुत दूर नहीं था। दोनों ही कंपनी बहुत एम्बिशियस थी कि वो भारत का जो मार्केट है उसमें पूरी तरह से अधिकार कर लें और इस तरह से दोनों के बीच में कंपटीशन होता रहा और दोनों के बीच में लड़ाइयां होती रही, जिसकी वजह से कर्नाटक के वार बहुत प्रसिद्ध हुए। दोनों के बीच में कर्नाटक के वार 3 टाइम्स हुए, 3 बार कर्नाटक के वार हुए। फर्स्ट कर्नाटक वार 1746 टू 1748, ये 2 साल चला, 1746 से लेकर के 1748 तक। फर्स्ट 1746 टू 1748 फर्स्ट कर्नाटक वार। कर्नाटक once under the control of Mughal Empire had become independent. Arcot, situated between Chennai and Pondicherry, was the capital town of Karnataka. French and English were on opposite sides in the 1744 War of Austrian Succession in Europe. The war had telling effect on India too. Animosity began to rise between English and French companies in India. French Governor Dupleix lured Nawab Anwaruddin of Carnatic in his favor. The French forces took control over the British fort in Madras. When the Nawab of Carnatic demanded the Madras fort, Dupleix refused to hand it over to Nawab. This led both sides to war and Carnatic Nawab was defeated. In 1748, peace was restored between France and Britain in Europe. Consequently, peace was restored between the two companies in India also. The Madras fort was handed over to the English company. Although peace was restored between the two, the war gave birth to new things. With the defeat of Carnatic Nawab, supremacy of European system of war was established. The European companies came to know that with further increase in internal interference in the politics of Indian states politics, supremacy too could be established further. This war also sharpened mutual rivalries and ill will between the two companies. कर्नाटक जो था वो जो मुगल साम्राज्य था उसका एक हिस्सा रह चुका था, लेकिन अब स्वतंत्र हो चुका था।
अर्काट जो था वो मद्रास और पौंडीचेरी के बीच में स्थित था और कर्नाटक की राजधानी थी। तो 1744 में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में युद्ध प्रारंभ हो गया और इसके साथ साथ जब फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में आपस में तनातनी शुरू हुई तो भारत में भी उनके बीच में तनातनी शुरू हो गई। तो इस तरह से धीरे धीरे युद्ध की स्थिति आ गई। तो जो हमारे वहां का नवाब था अनवरुद्दीन, उसने क्या किया, कर्नाटक के वार में जो वो फ्रेंच गवर्नर के फेवर में था, तो फ्रांसीसी जो गवर्नर था उसने लालच देकर अपनी तरफ उसे मिला तो लिया, लेकिन जब और मद्रास पर उन्हें कब्जा कर लिया। तो जब लालच जो दिया था कि उसे किला दिया जाएगा, तो जो फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, उसने किला देने से मना कर दिया। तो फिर से दोनों सेनाओं के बीच में फिर से युद्ध हो गया और इसमें जो कर्नाटक को हार माननी पड़ी, कर्नाटक उसमें हार गया। फिर उसके बाद जो मद्रास फोर्ट जो था, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में समझौता हो गया 1748 में, जिसमें उधर शांति हो गई, तो यहाँ हमारे भारत में भी फिर उस शांति के कारण यहाँ भी शांति हो गई। तो जो मद्रास का जो किला था वो अंग्रेजों को वापस कर दिया गया और इस तरह से शांति हो गई। लेकिन ये शांति जो हुई थी कुछ और बातों को जन्म दे रही थी। तो इसमें क्या हुआ, कर्नाटक की हार से जो था ये तो सिद्ध हो गया था कि जो यूरोपियन है वो बहुत ज्यादा युद्ध प्रणाली में श्रेष्ठ है। और यूरोपीय कंपनीज इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी थी कि यदि हम भारत की इंटरनल चीजों पर, इंटरनल पॉलिटिक्स पर यदि हम सुपरमेसी कर लें, अगर हम कब्जा कर लें, तो हम यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से अपनी कंपनी को स्थापित कर सकते हैं।